Okay, Pranav, got your message. Fine. So let's continue with our topic, right? Last time we had started with this new lesson called social health, right? And you know very well कि बहुत general discussion था, and in the exam also questions are asked based on your opinion on a certain situation, correct? So let's continue with the discussion. Any doubts or queries? I don't think so anyways. You have anything with respect to this topic till now? Yes? Okay. So last time हमने जैसे डिस्कस किए थे, we had talked about what is the meaning of social health, what are the different factors that can affect your social health, correct? Health का भी क्या concept है वो भी हमने discuss किया था, and then we discussed about something called the factors that can affect your social health, जैसे mental stress and the different reasons that can cause mental stress, correct? So mental stress भी होने के बहुत सारे reasons है, like there are practical reasons, and this is something which is given very appropriately in your lesson, right? And the reason is because this is something which is going on in the current situation in our life, like न्यूज़पेपर वगैरह सब पढ़ते रहेंगे कि क्या क्या इस तरह के हादसे होते रहते, correct? So Anandita is here. Yeah. Okay, everybody, Anandita, your school has started, right? Yes, sir. Niketan was the first one in the race. Yeah. Yeah. Okay. Come on the video, everyone. So school में क्या माहौल है? Everything has been arranged properly. Regular you get sanitizer showers. Yes. अच्छा. And spacing. There are teachers everywhere. अच्छा. Like even in the recess, there are many teachers in the corridor, and every class goes line wise. Like every recess is not together. अच्छा. So they are trying their best to. And only हाँ. 10th standard या others batches also? I don't think so. Only 10th, I think. Only 10th and 9th. From Monday, it would be for 5th to 8th. Okay. From Monday. And as far as I know, according to what rules the government has given, there cannot be any recess or break in between. Students have to get their tiffins from home. No, there is recess, but like for Chilaya, only there will be recess. Then once the Chilaya's recess is over, then Bharat. Like Achha, that. one division at a time, Yeah, one division at a time. so that there is no crowding and all. Yes. Okay, good. So feeling you might be feeling very different, no? ऐसा school start हो गया, but freedom अलग है is थोड़ा. anyways, क्या करे? This academic year, it has been like that. Can't help it, right? Chalo, anyways, in 10th standard, at least you got to see your school once. No? Okay. So we were talking about this mental stress, and इसमें latest example ये भी आ सकता है कि in this COVID situation everybody was imprisoned at home. So at one point of time also people were feeling a lot of mental stress कि कब school start होगा, कब जाना है, right? Yeah. Remain on the video, everyone. Sir, Yeah, बोलो. I have not brought my pencil. I will just go and bring Yeah, it. yeah, sure. No problem. Okay. So that is another topic we can discuss, and इसमें एक और हमने डिस्कस किया था different types of financial frauds. टीवी में भी एड्स आते हैं ना, वो एयरटेल का एड देखा है 93,000, right? They are showing all of you in different ways कि fraud कैसे होता है करके, correct? And there are people who actually fall prey to all this. That is why it is always advised कि any time on the phone you are not supposed to give any of your credit card, debit card details or account details to anybody, and password वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं, correct? Even if that person is very convincing enough, you are not supposed to give any kind of detailing, correct? That is very very important, you know, because that can lead to major problems. And here these people are so smart enough, they do not take time to wipe off your money. लाखों का पैसा रहेगा, इतना मेहनत का पैसा होगा, एक झटके में खत्म, correct? So that is very dangerous.
And then we discussed about different types of addictions. Correct? So there are various types of addiction, right from smoking till drugs. Okay, and all of them are potentially very dangerous. Biologically उसके क्या effects होते हैं, everybody is well aware about that. And nowadays, as I said last time, कि दूसरा जो type का addiction आ गया है, that is about addiction to online games या simply spending time online. Correct? कि online में social media का addiction हो जाते हैं, right? There are photographs and selfies taken at all intervals and posted in your social media because people are addicted to getting the number of likes and all. Zamana वही चल रहा है, correct? So all those things one should be always having an upper limit, correct? It should not happen that you are getting addicted to anything in such a way that it is affecting your own productivity, especially in a growing age when more importance has to be given to your overall personality, correct? वो ज़्यादा ज़रूरी है. And then unfortunately there are some people who suffer from some diseases which are incurable. Okay, बीमारी सबको होते हैं, but most of the time the illness or any kind of sickness is in such a way that you get treated after some time. Maybe some treatments can take some more time also, but there are some diseases which are incurable, and if unfortunately anyone gets that, then it becomes a cause of mental stress. जैसे AIDS, you are very well aware, correct? TB, this is another big problem. TB के केस में इसका तो सबसे बड़ा रीजन, आई डोंट नो आई हैव स्पोकन अबाउट दिस टू ऑल ऑफ यू और नॉट, यू नो वेरी वेल एंटीबायोटिक्स, करेक्ट? हमने माइक्रोब्स के लेसन में पढ़ा है. सो जनरली whenever there is any kind of an infection and the doctor suggests you antibiotics, तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखना है कि any antibiotic should never be taken without the prescription of a doctor. इंडिया में बहुत बड़ा टेंडेंसी है सेल्फ मेडिकेशन, कि एकदम लास्ट ऑप्शन रहेगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे, अदरवाइज वी बिकम आवर ओन डॉक्टर्स. हमें लगता है ये सब तो चलता रहेगा, कॉम्बिफ्लैम ले लो, क्रोसिन ले लो, है ना, या बेटाडिन ले लो, समथिंग लाइक दैट. एंड देन थिंग्स स्टार्ट डिग्रेडिंग, देन यू फील कि नहीं अब तो मतलब जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास. सो दैट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम. वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके, इमरजेंसी है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है तो ठीक है, क्रोसिन ले लिए. But again and again for 3 days continuously, if you are taking that, then it is a wrong thing to do. And डॉक्टर्स के पास भी जब जाते हैं, डॉक्टर्स डायग्नोसिस वगैरह करके जब दवाई देते हैं, they give you say 3 tablets a day, and they will tell you कि these 3 tablets you have to take 2 times in a day. तो उसमें भी हम लोग अपना डॉक्टर पना दिखाते हैं कि दिन में 3 बार नहीं लेते हैं, हम लोग दिन में 2 बार लेते हैं और 3 दिनों तक लेते हैं. That means we are changing the dose. We do that many times. You must have seen or heard कि डॉक्टर्स जो डोज बोलते हैं हम लोग उस हिसाब से नहीं लेते. वी चेंज दैट, कंसिडरिंग दैट नहीं चलो बहुत ज्यादा डोज क्यों लेने का, डॉक्टर 2 दिन बोला तो मैं 3 दिन तक लेता हूँ करके. तो दिस थिंग विच वी आर टेकिंग कैजुअली, दैट इज द रीजन टीबी जैसा बीमारी आज बहुत ज्यादा हो गया. दिस इज कॉल्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी वेरी स्मार्ट इनफ कि हम लोग जरा सा भी डोज को बदल देते हैं तो वो अपना रेजिस्टेंस पावर बदल देते हैं. एंड वो रेजिस्टेंस पावर ऐसे बदल देते हैं कि लाइक दोज एंटीबायोटिक्स विच वर एबल टू किल दोज बैक्टीरिया some years back, now the same antibiotics are not effective on them. टीबी के केस में ऐसा हुआ है कि अलग अलग वैरायटीज आ गए टीबी के. एक होता है एमडीआर. सबसे पहले तो टीबी का जो बैक्टीरिया है, अर्लियर एक टाइम था व्हेन इट यूज्ड टू अफेक्ट वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल एंड दैट टू मेनली इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. कि जब कफिंग वगैरह होता था उसमें ब्लड निकलता था, दैट वाज द मेन सिम्टम. बट नाउ टीबी हैज स्टार्टेड अफेक्टिंग मेनी अदर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी. मसल्स में टीबी होने लगा है, बोन्स में टीबी हो रहे हैं, नर्वस सिस्टम में टीबी हो रहे हैं, एंड दैट टू वेरी सीवियरली. इसका रीजन यही है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व्ड. तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो हम ही लोग कर रहे हैं उसी का नतीजा है.
So now there are different types of TB, like you have MDR TB, moderately drug resistant. Then you have XDR TB, extremely drug resistant. And whenever any medicine is given to human being, तो डॉक्टर्स जो है वो एक पर्टिकुलर डोसेज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन नहीं दे सकते, बिकॉज डॉक्टर्स वांट टू किल ओनली द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉट द पेशेंट। करेक्ट। तो अगर वो डोज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे, कई बार होता है ना कि दवाई ले लेते तो बहुत नींद आ जाते हैं, ड्राउजीनेस होते हैं, सो दैट इज द मैक्सिमम डोज। तो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोज अगर देंगे माइक्रोब को मारने के लिए, तो इमेजिन कुंभकर्ण की तरह सो जाएंगे हम लोग। सो दैट ऑल्सो डॉक्टर हैज टू टेक केयर। करेक्ट। तो मैक्सिमम स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल डोज में भी अगर माइक्रोब नहीं मर रहे हैं, तो उसको एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट बोलते हैं। टीबी हैज रीच दैट लेवल। And in today's date, in the entire world, the maximum number of patients who are dying because of any infectious disease, that is because of tuberculosis. Number 1 पे पहुंच गया infectious disease के केस में। Okay, then leprosy also. लेप्रेसी में अलग अलग स्टेजेस होते हैं, बट द फाइनल थर्ड स्टेज जो है दैट इज इनक्योरेबल। नर्वस डिसऑर्डर वगैरह हो जाते हैं। ओके, एंड मेंटल डिसऑर्डर्स आल्सो, ये भी एक अपने कंट्री में अलग फंड है। सी मेंटल डिसऑर्डर्स और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो बोलते हैं, इन आवर कंट्री पीपल स्टिल कंसिडर दिस एज समथिंग मॉरली रॉन्ग। अभी हमें सर में दर्द है, पेट में दर्द है, ऐसा कुछ ऑप्शन है तो जाते हैं ना डॉक्टर के पास, एंड अगर कोई पहचान वाले ने पूछ लिया क्या हो गया, तो बोलते हैं बीमारी ऐसा ऐसा है, डॉक्टर के पास जा रहे करके। वी डोंट फील एनी अशेम्ड अबाउट इट। बट इफ यू से दैट आई एम गोइंग टू विजिट अ साइकोलॉजिस्ट, तो इमीडिएटली यू आर गिवन अ टैग, तो पागल है। दैट इज द टेंडेंसी इन अवर कंट्री, है कि नहीं? साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं या साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, मतलब ये पागल है। And then people people will start alienating you, दूर रहेंगे, and अपने फैमिली से भी दूर रहेंगे, इसके घर में पागल रहते। So that is something one has to change. A mental disorder doesn't necessarily means that person is a पागल or something. वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, किसी को भी हो सकता है, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, and there are specialists available. Psychologists and psychiatrists are treating that. अभी अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, डेमेंशिया, इस तरह के जो बीमारी होते हैं, दिस आर मेंटल डिसऑर्डर्स। जनरली ओल्ड एज में होता है, यंग एज में थोड़ा कम रहता है चांसेस, बट देयर आर पीपल सफरिंग फ्रॉम दैट एंड दे नीड प्रॉपर अफेक्शन, लव एंड केयर। तो उनके साथ एग्रेसिव बिहेव करेंगे, दूर रहेंगे, तो इट विल एग्रीवेट देयर प्रॉब्लम। अब इफ यू से टेल समवन कि मुझे पेट में दर्द है, तो लोग बोलते हैं कि नहीं, इससे दूर रहे। डजंट मेक सेंस, राइट? सेम वे अगर मेंटली भी कोई प्रॉब्लम हो तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, इट कैन हैपन टू एनीबॉडी, राइट? तो ये सब चीजें अपने आप में चेंज करना जरूरी है। ओके, देन या दिस आल्सो यू नो वेरी वेल। ये फोटो में क्या दिखाया जा रहा है बताओ? व्हाट इज बीइंग शोन ओवर हियर? माय क्वेश्चन है इसके ऊपर, देखो, वेदर द इंसिडेंट शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर इज रैशनल, एक्सप्रेस योर ओपिनियन। बोलो, रैशनल मतलब मॉरली करेक्ट और इनकरेक्ट? क्या दिखाया जा रहा है पिक्चर में, पहले वो बताओ। इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। क्या दिखाया जा रहा है इस पिक्चर में? एक बेकर है और उसको एक वुमन डांट रही है। हाँ, डांट रही है या फिर उधर से भगा रही है। And this person is a beggar, and you can say he is a old person. Why it is incorrect? Why it is not rational? बिकॉज उसे भगाना नहीं चाहिए। Then ओल्ड पर्सन है, सो उसको मतलब उसको खिला मतलब फूड लाके दे सकते हैं। Yes, you can actually see even if the person is a beggar and किसी भी circumstances के वजह से वो beggar बन गया होगा, but ultimately we have to remember that he is a human being and he has his necessities, the main thing being food. तो ऐसे ही भगाने से अच्छा वो जानवर नहीं है। ऐसा घर के बाहर कोई बैठा होगा तो कैसे चलेगा? अगर वहां से उनको निकालना भी है तो एक तरीका रहता है ना,
you can at least drive away that person politely. Correct? जानवर की तरह अगर उसको ऐसे भगा देंगे तो then it's not a good thing. That is not rational. Correct? So you can give him some food or something and request him कि please यहाँ मत बैठिए, आके जाके बैठो. That is the least you can do. Correct? And ऐसे लोगों को जब खाना भी देते हैं तो सही तरीके से देना चाहिए. Many a times I have seen this very unfortunate thing कि इनके ऊपर खाना फेंकते हैं. And that to newspaper में wrap करके or something. This is not the way. कचड़ा नहीं है ना वो. That is something that person is going to eat, even if it is a leftover. And खराब खाना कभी किसी को नहीं देना चाहिए. There are people I have seen doing that also. कि खाना अगर किसी रीजन से खराब हो गया घर में तो वो खराब खाना भी किसी को दे देते खाने के लिए. If we cannot eat, then how can another person eat? Correct? So even if you are giving food to someone, make sure that it is edible enough. या एक्स्ट्रा अगर रह गया जो नहीं खा पा रहे तो ऐसा खाना देना ठीक है, बट खराब नहीं देना और सही तरीके से देना, बिकॉज दैट इज फूड. So that is the reason it is rational. So this is something you have to explain in your own words for this kind of question. Okay, it is incorrect. Okay, इसका मतलब ये भी नहीं कि उसको एकदम इनवाइट करके अपने घर के अंदर बुला ले, even obviously that is not possible. Correct? But there is a way of saying it, because considering the fact that the other person is also a human being. Okay, that is about social health, right? And then you must have seen, I remember a few years back I used to go for those home tuitions. बॉम्बे साइड में ग्रैंट रोड साइड वगैरह जाता था मैं, तो ग्रैंट रोड के स्टेशन के ऊपर का जो फ्लाईओवर है, ऑन दैट फ्लाईओवर ऑन द साइड छोटे छोटे ऐसे गली रहते थे. देयर आई यूज्ड टू सी पीपल सिटिंग एंड लिटरली इंजेक्टिंग ड्रग्स ऑन ईच अदर. ड्रग एडिक्ट्स. डेंजरस साइट एक्चुअली, कि रैंडमली किसी भी कोई भी इंजेक्शन लेकर किसी को भी लगाया जा रहा है. आई हैव सीन दैट लिटरली. तो इमेजिन द नंबर ऑफ सच केसेस, बिकॉज इंजेक्शन सुई वगैरह पता है कि यू कैन नॉट शेयर इट, दैट कैन लीड टू लॉट ऑफ एसटीडीज. करेक्ट? तो ऐसे ड्रग्स और ऐसे लोग जो होते हैं ड्रग एडिक्ट्स, दे डोंट नो, दे आर लाइक टोटली डेंजरस. एंड उनका सोशल सर्कल भी ऐसा रहता है कि इट बिकम्स वेरी डेंजरस सिनेरियो, एंड दे बिकम एंटी सोशल एलिमेंट्स ऑल्सो. Correct? So they don't have any family, they don't have any moral values. So these kind of people will keep on littering and making place dirty, right? So this becomes very unsafe for a normal person. And many cases have happened with respect to that also. Okay, so all these things are very very dangerous. इसीलिए ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि एटलीस्ट फ्रॉम समथिंग लाइक ड्रग्स one should be totally away. And इसमें दूसरा प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि there are many people who are into smuggling drugs. illegally ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं पैसे कमाने के लिए. ओके, तो ड्रग स्मगलिंग होता है, ड्रग का पूरा माफिया चलता है, कितना कुछ एसोसिएटेड है. द पुलिस क्राइम बेंच आर लाइक हेल बेंट ऑन कीपिंग अवे ऑल दिस पीपल. एंड इसमें सबसे ज्यादा जो फंस जाते हैं वो है यंगस्टर्स, एडोलेसेंट्स. because adolescents are in a growing age. You have already learnt about this in that lesson, है ना? growing stage में है, mind भी delicate होता है, so every time they cannot think very rationally. So some things which are very attractive for them, they get attracted very fast. So that's how one becomes a drug addict. तो इसीलिए समझना जरूरी है. You should be scientifically aware that this thing should be completely away, not even a single time. That is very very dangerous. ठीक है? And then you have something called communication media. Okay, ये बहुत अच्छा दिया देखो this picture. Imagining just a random example, 1998 का सीन और 2017 का. ये पहला पिक्चर 1998 का, क्या दिखाया जा रहा है इसमें? घर पे आके पढ़ने बोल रहे हैं. Yes, this boy वो बाहर ही खेलते बैठा पूरा टाइम, घर पे आ ही नहीं रहा, तो माँ उसको खींच के अंदर ला रही कि हाँ बैठ और पढ़ाई कर. एंड 2017 में देख क्या हो गया. What is happening now? मैं उसको धक्का देके बाहर भेज रहे, जा भाई बाहर का हवा लगने दे, do some exercise. Do you agree with this situation? ऐसा हो रहा है? Yes, sir. Yes, हाँ, करगी, very good. क्यों ऐसा? What is the reason behind this?
मोबाइल फोन्स, वीडियो गेम्स। Seriously, all types of devices. ये कितना गंदा चीज है ना इस मामले में सच में. Okay, because no doubt it has made communication very easier, but उसका जो addiction हो जाते हैं, imagine people sitting using the mobile phone and playing cricket on it. क्या है? क्रिकेट क्या होता है? जो फील्ड पे खेलते हैं ना. मोबाइल पे खेलने में क्या मजा, उंगलियों का एक्सरसाइज हो रहा है सिर्फ. राइट, एंड दैट इज वेरी डेंजरस ऑल्सो. आई रिमेम्बर मैंने सम इयर्स बैक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा था, समवेयर इन सम फॉरेन कंट्री देयर वाज दिस बॉय जो अप्रोक्स तुम लोग के एज का रहेगा, 10th स्टैंडर्ड के ग्रेड का समथिंग. ही वाज टोटली एडिक्टेड टू ऑनलाइन गेम्स एंड he had actually recorded in the sense for 2.5 days continuously he was online gaming continuously. उसका नींद भी नहीं हुआ. He was just playing online games. After 2.5 days, उसके पेरेंट्स उसको बहुत बोले, but he was not listening. And you won't imagine, 2.5 days के बाद he died. Because इतना continuous online exposure obviously will play a havoc on your nervous system. है कि नहीं? कितना भी enjoyable रहेगा, but there is a limit to everything, right? So that is the major situation nowadays, and this is very, very bad situation. The communication media, it's not that you should totally avoid it. अभी हम लोग lectures भी online ही ले रहे हैं, तो we can't help it, right? But this is a good thing. But इसको कितना use करना है, यह हमें पता होना चाहिए. Now, if you say television is a good thing, सबके घर पे टीवी है, और उसको कितना देखना है, कितना नहीं देखना है, उसमें क्या कंटेंट्स देखना है, क्या नहीं देखना है, that is in our hands. So one has to be mature enough to understand it. Again, now if you start seeing a program like say Big Boss, anybody likes it? Big Boss देखते हैं? देखना तो दूर के बाद, सबसे पहले तो मुझे उसमें कोई सेंस ही नहीं लगता. This is my opinion, I don't know. है ना? So but there are people who I have seen they are crazy उसमें about पूरी it. देर झगड़ा करते झगड़ा रहते हैं, झगड़ा ही करते रहते हैं. फुल टाइम झगड़ा And करते everybody हैं. is talking, nobody is listening. What is this? Doesn't make any sense. उससे अच्छा कितने सारे मीनिंगफुल चीजें हैं ना, जैसे कौन बनेगा करोड़पति आया था, कितना नॉलेज गेन होता है उसमें. एंड उसके साथ साथ लाइक जितने जितने कंटेस्टेंट्स आते हैं, तो यू कम टू नो कि अलग अलग लोग कहाँ कैसे एरिया में रहते हैं, कैसे उनका लाइफ है, व्हाट आर द स्ट्रगल्स दे आर गोइंग थ्रू, राइट. दैट इज समथिंग मोर यूजफुल एंड प्रोडक्टिव. एंड ये जो बीच में सीरियल्स का ट्रेंड बन गया था, डू यू वॉच एनी सीरियल्स, स्पेशली दैट सास बहू टाइप्स? नहीं. डज इट मेक एनी सेंस? नहीं. एक थप्पड़ मारा तो उसका रिकैप करते करते 4 सीन दिखाएंगे, एंड देन 4 अलग अलग एक्सप्रेशन, उसमें आधा एपिसोड खत्म हो जाते हैं. करेक्ट. So they are just minting money by all this. No sense at all. But it doesn't mean that every serial is bad. There are some which are nicely made and something educational also. So what you have to see and what you don't have to see, that is in our hands. I remember in my childhood जब टीवी का जब स्टार्टिंग स्टेज था, सबके घर पे हुआ भी नहीं करता था. The best part was पूरे मोहल्ले में एक टीवी रहता था. And especially on a Sunday morning 10 o'clock महाभारत सीरियल, पूरे मोहल्ले के सब लोग घर पे आके जमा होते थे, एक साथ बैठ के देखते थे. I literally seen that, and इतना मजा आता था उसमें, because that was the way everybody used to gather together and meet each other. अभी एक एक घर में 4 4 टीवी हो गए. You can watch TV even in your mobile. Correct. That is the technology we have reached, right? So everything is available very easily for us. So how nicely to make use of it, that is very important. Okay. Even online के लिए भी parents को ये सिखाया जाता है कि there is something called a child mode. कि there are some websites which it is better if children below a particular age do not watch. Okay, it is only for the grown-ups, and that too only when it is excessively required, right? तो वो सब भी बहुत ज़्यादा important है. And online में ऐसा हो गया है कि hacking वगैरह आसानी से हो जाते हैं. Anybody can actually hack your device. तो उसमें से सारा डेटा निकाल लेंगे, and उसमें अपना personal data भी निकल जाता है. There are photographs and all which are taken. फिर उसका morphing करके उसको blackmailing करते हैं. You must have heard about this kind of cases, है ना? So that is all very very dangerous. कि अपना personal data जो है, it should be, even if social media पे भी अगर use करते हैं,
So one has to make sure that it is not available or visible for any random person. Okay, जो अपने known trusted contacts है उतना ही रखना है. And through online, it is always advised not to interact with any stranger. अभी फेसबुक जैसे चीज है, आसान है कि कोई रैंडम पर्सन से भी बातें हो सकते है कि नहीं, वाया वाया कांटेक्ट करके आता है या समथिंग लाइक दैट. सो देयर आर केसेस वेयर पीपल हैव मेट ईच अदर ऑन फेसबुक, ओके, एंड देन बाद में पता चला कि वो फ्रॉड निकला, राइट. सो ऐसा फ्रॉड निकला कि या तो पैसे हड़प लेते हैं और दे ट्राई टू किडनैप समबडी और एनी अदर काइंड ऑफ फिजिकल असॉल्ट आल्सो. ऐसे भी केसेस हुए हैं. तो वन कैन नॉट ट्रस्ट एनीबडी वेरी इजीली. ओके, इवन यहाँ ये इसमें तो ऐसा हो गया कि टेररिज्म जैसे लेवल तक भी पहुंच गए कि फेसबुक के थ्रू या ऐसे थ्रू देयर आर पीपल हु आर स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, ऐसे अच्छे लेवल पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको माइंड वॉश कर दिए दिस टेररिस्ट ग्रुप्स. उनको उनके रिलीजन के हिसाब से कुछ वीडियोस वगैरह भेज दिए, कुछ ऑनलाइन कंटेंट भेज दिए. दे विल रीड दैट, दे विल गो थ्रू दैट एंड उनका ब्रेन वॉश हो जाता है. एंड देन दे स्टार्ट लिविंग देयर होम, गोइंग टू सम टेरिटरी एंड बिकम टेररिस्ट. ये भी हुआ है. Okay, so this kind of things are also available. That is why it is always advised in any situation, okay, you should not blindly follow anybody. You should always apply your own mind कि उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, एंड जल्दबाजी में कभी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए. ऑलवेज टेक टाइम टू थिंक एंड देन गिव अ कमिटमेंट. ओके, एंड इसमें कुछ गलत नहीं है अगर किसी और से एडवाइस लेकर फिर हम लोग कुछ जवाब देते थे, स्पेशली योर पेरेंट्स. ऐसे केसेस में इट्स ऑलवेज बेटर यू टेक द एडवाइस ऑफ एल्डर्स. ओके, अदरवाइज एक सिंपल मिस्टेक एंड एंटायर लाइफ कैन गेट डिस्ट्रॉयड. करेक्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो ये सब एग्जांपल्स हैं. देन या दिस इज इंपॉर्टेंट. देखो आज के जमाने में बिकॉज सोशल मीडिया वगैरह और डिवाइसेस इतना रैम्पेंट हो गया है कि लाइक पीपल आर नॉट एक्चुअली मीटिंग ईच अदर. व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बन जाते हैं, जोक्स फॉरवर्ड होते हैं, ऑल दोस थिंग्स कीप हैपनिंग, बट पर्सनली मीटिंग समबडी विथ फ्रेंड्स एंड ऑल, स्पेंडिंग टाइम, दैट पर्सनल टच इज गॉन. वो आमने सामने मिलने का जो एक इफेक्ट है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. एंड यू मस्ट हैव सीन कि व्हेन ये होता है कि लाइक अभी मोबाइल लेके बैठ गए तो यू आर कंटिन्यूअसली चिट चैटिंग विद समबडी और डूइंग समथिंग ऑनलाइन, तो उसमें हम लोग आसपास क्या हो रहा है उसमें नजर ही नहीं रहते. तो योर पेरेंट्स आर टेलिंग यू समथिंग, यू डोंट लिसन, ध्यान नहीं रहते. तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन. तो एक ही घर में 4 मेंबर है फैमिली के, चारों अपने अपने मोबाइल पे बिजी है. तो दिस फीलिंग बिटवीन द फैमिली, द बॉन्डिंग बिटवीन फैमिली इज ऑल्सो डिक्रीजिंग वेरी मच. डू यू एग्री विथ ऑल दिस, राइट. तो उसमें दूसरे फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं जैसे टायर्डनेस, continuous exposure to devices, headache, insomnia. What is the meaning of insomnia? नहीं आती. हाँ, lack of sleep. Okay, forgetfulness. ये तो बहुत ज्यादा होने लगा आजकल, right? People have tendency to forget each and everything. Status डालना नहीं भूलते, right? Status check करना नहीं भूलते, but बाकी जो main चीजें हैं वो भूल जाते हैं, and that is wrong. Okay, tinnitus. Tinnitus का मतलब है कि कंटिन्यूअस फोन वगैरह यूज करके या हेडफोन में गाने वगैरह सुनने से देयर इज अ काइंड ऑफ अ रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर कॉन्स्टेंटली, उसको tinnitus बोलते हैं. ओके, जॉइंट पेन्स एंड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. एंड अनदर डेंजरस थिंग, सेलफोन से जो रेडिएशंस आते हैं ये बहुत डेंजरस है. ओके, these cell phones emit radiations and constantly if you are near it can lead to cancerous conditions. एंड ग्रोइंग एज में बच्चे जो होते हैं उनके बोन्स वगैरह डेवलप नहीं होते बराबर. ओके, एंड दैट इज द रीजन इट इज एडवाइज्ड दैट इफ यू आर कीपिंग द फोन इन योर पॉकेट्स, ऑलवेज दिस पार्ट, जो पीछे वाला पार्ट है वो बाहर के साइड आना चाहिए. दिस वे इट शुड बी केप्ट इन योर पॉकेट. द बैक एंड ऑफ द फोन शुड बी अवे फ्रॉम यू. ओके, इन विच एवर पॉकेट यू कीप इट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके,
And there is a tendency, a mental disorder called as autism. You know that? Autism का क्या मतलब है? किसी को बोलते हैं कि your child is autistic. Autism का मतलब है कि behavioral development या mental development is not complete according to that age. उसको autistic करके बोलते हैं. Okay? बोलने का वगैरह तरीका जो रहता है वो जैसे if you are suppose 15 years old but it will behaviorally the person might be like a 7 or 8 year old. उसको autistic बोलते हैं. Okay? And tendency for selfishness. ये जो important human traits हैं कि you should be empathetic. Empathetic का मतलब है किसी भी situation में ये सोचने को आना चाहिए कि सामने वाला क्या फील कर रहा होगा. That is empathetic. Looking at some pain of others, you should feel that pain. यार इसको कैसा लग रहा होगा. That tendency should be there. Okay? दूसरों के point of view सोचना बहुत जरूरी है. Okay? That attitude you must be developing at this stage. तो ये continuous social media वगैरह में से नहीं possible है. Okay? Understood these points? ये देखो ये फोटो में क्या दिखाया जरा बोलो. Is this a good thing to do? मोबाइल में देख के खाना खा रहे. Yes. No. It is not a good thing to do. Why? Diksha will answer this. Why it is not a good thing to do? खाने से ज्यादा मोबाइल पे ही ध्यान रहता है. Yes. तो खाने में क्या खा रहा है उसको तो पता ही नहीं है. तो बायोलॉजिकली क्यों गलत है? बिकॉज खाना तो जा रहा है उसके पेट में. बायोलॉजिकली व्हाई इट इज डेंजरस? द रीजन इज कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं, ऐसा कहीं तो पढ़ा था मैंने कि खाना खाते वक्त ऑल योर 5 सेंसेस शुड बी इनटू द फूड. दैट्स इंडियन कल्चर में बहुत अच्छा चीज है. हम लोग हाथ से खाना खाते हैं. बिकॉज व्हेन यू आर टचिंग द फूड यू आर फीलिंग द टेक्सचर, द टेम्परेचर ऑफ द फूड. तो वो अपने ब्रेन को स्टिमुलस देता है कि खाना जो आ रहा है वो ऐसा रहेगा. अगर मोबाइल फोन वगैरह में ध्यान रहेगा तो खाने को देख नहीं रहे, तो यू आर लूजिंग दैट सेंस ऑफ विजन टुवर्ड्स द फूड. So that's why you should be looking at the food and appreciating it कि अरे वाह इतना अच्छा खाना दे रहे हैं. एंड कहीं ना कहीं एक प्रेयर भी होता है एक्चुअली बिफोर यू स्टार्ट ईटिंग अ मील. वो खाया जाता है. आई थिंक विद्या निकेतन में बोलते हैं ना प्रेयर लंच के पहले. है ना? यस. तो दैट प्रेयर इट्स जस्ट अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड कि यू आर फॉर्चुनेट इनफ दैट यू आर गेटिंग फूड टू ईट. एंड देयर आर सो मेनी अदर्स हु आर अनफॉर्चुनेट कि उनको खाना नहीं मिल रहा है. ये टेंडेंसी डेवलप होना जरूरी है. Then there are people who keep complaining about food. Every time, every day, you know, it's not necessary that you will get the food of your choice. But खाना मिल रहा है, खाना चाहिए. Correct? You should appreciate it and never waste it. And there are people I have seen, especially very aggressive adolescents, कि खाना पसंद नहीं आया तो उसे फेंक देते हैं. Extremely wrong thing to do. One should never ever insult food. है ना? उसको मना भी करना हो तो सही तरीके से मना करना होता है. राइट. दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. होटल वगैरह में जाते हैं तो खाना वेस्ट करते हैं कितना. बैंगलोर में मैंने सुना है कि एक शुरू किया ऐसा एक रेस्टोरेंट में कि इफ यू ऑर्डर समथिंग एंड इफ यू आर नॉट फिनिशिंग एवरीथिंग ऑन द प्लेट, उसमें अगर छोड़ देंगे वेस्ट करेंगे. बिकॉज होटल में तो जनरली उनको फेंकना ही पड़ता है. दैट कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन. राइट. सो वो होटल वालों ने रूल निकाला कि इफ यू आर लीविंग समथिंग बैक ऑन द प्लेट एंड इफ यू आर नॉट कंज्यूमिंग इट यू विल हैव टू पे अ फाइन. ये एक बहुत अच्छा आइडिया किया देखो. राइट. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये अपना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें फेंकना नहीं चाहिए. यू टेक सम लिटिल फूड एट अ टाइम, कंप्लीट इट एंड देन ऑर्डर मोर इफ यू वांट. बट एक साथ इतना ऑर्डर कर लेंगे फिर खाएंगे नहीं, वो गलत चीज है. एंड स्पेशली जैसे शादी वगैरह में जाते हैं बुफे सिस्टम रहते हैं तो यू नो वेरी वेल सबके सब बकासुर बन जाते हैं. करेक्ट. 3 इडियट्स में देखा रहेगा प्लेट भर भर के, है ना, रोटी वगैरह बाहर लटक रहे हैं.
So all these things should not happen. You are getting food, you will get whatever amount of food that you want, but waste mat karo. That's a very very important thing. Correct? तो खाते वक्त पूरा ध्यान जो है खाने पे रहना चाहिए. Enjoy eating the food. There is a word called mindfulness. Whatever activity you are doing, do it with full mind. Only then that activity will help you sustain. वरना जैसे जैसे खा लिया, ओके फटाफट ठूस के खा लिए, चबाए नहीं, तो डाइजेशन प्रॉब्लम्स, तो उसमें वो खाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ ना. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड देन ये देखो नीचे वाले फोटो में, व्हाट इज दिस? ऐसे भी केसेस होने लगे. दैट इज द रीजन ये अपने सिलेबस लेवल पे आ गया. देखो है कि नहीं, कितने केसेस हो रहे हैं जहाँ पे सेल्फी डेथ करके माना जाता है. अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने सुना है कि ये इंक्लूड कर दिया कि डेथ ड्यू टू सेल्फी या इंजरी ड्यू टू सेल्फी इज कंसिडर्ड एज अ क्राइम. कि जिसका जो खुद सेल्फी ले रहा है वो खुद मर गया तो ठीक है, आई मीन ठीक है, मतलब किसी और को नहीं एक्शन ले सकते, बट उसके वजह से किसी और का नुकसान हुआ तो देन दैट पर्सन विल बी ट्राइड. ऐसा भी होता है. ओके, जैसे अभी फोटो में दिख रहे हैं, somebody is taking a selfie and that car owner is honking, but इसको सुनाई नहीं दे रहा है. Correct? These are very dangerous things. एक काम करो, disconnect and join back again, we'll continue.